Hello, roll number 720. Yes, sir. So, are you able to hear me properly? Yes, sir. So, today I am going to discuss about the project report performer. Okay. Yes, sir. So, the document is being sent to you in your WhatsApp group. Okay? Yes, sir. And you Received it. can go through that document. It's a Word document, so you are going to edit it as and when required. Fine. Yes, sir. So, have you ever developed any report? No, sir. Till now, you haven't done that. Okay. Yes, sir. So, look, whatsoever work you are going to do, fine. Yes, sir. As I have told you that I will lead you up to data dictionary. Okay. Okay, sir. Only development part will be left. Fine. Fine. You are not going to design the source code. You are not going Yes, to sir. test them. You are not going to integrate them, and you are not going to implement them. Okay. Okay, sir. So, what is the topic of your project? Sir, medical. Hello. Hello. What is Hello. your project title? Sir, आपको अपनी I don't प्रोजेक्ट have टाइटल it. ही नहीं मालूम है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? रोल Okay, sir. नंबर 702. Roll number 702, are you present? Okay, so Altaf, what is the title of your project? Good. So, online criminal record management system, when you are going to develop all these things, okay? You are not, don't say develop, you are going to design all these things because the development part is being left for semester 6, okay? Yeah, if you are willing to develop, then I will give you support, no doubt about that. Okay. But I have set the goal that in semester 4, you have to work till the design part. Okay. So right now I am going to discuss about how to present your work. Okay. Because very soon I am going to give you an assignment. Okay, that assignment is to design the synopsis. Okay, so synopsis is nothing but it is a proposal. Okay, so it is nothing but it's a project proposal. So I am trying to give you the idea about how to develop the report. Okay, and for that purpose you have to go through this documentation. Okay, this document is having around 13 to 14 pages. Okay, and for that purpose what you have to do, you have to design the, first you will have to look into that. So look, your project report is going to have these many things. Okay, so 13 things, 13 to 14 things are required. Okay, so right now here 13 things are listed. Okay,
So I am starting with first one. Okay, this is the cover page. So we are going to have two cover pages. Okay, and after that we are going to have the synopsis. Okay, synopsis is nothing but it's a document which is having maximum 10 pages. Okay, तो आपको अभी जो सिनॉप्सिस बनाना है उस सिनॉप्सिस में मैक्सिमम 5 पेज होंगे. ओके, I will give you format of one particular synopsis. Okay, and I will also give you the example or a soft copy of one project report. Okay, that project report has been designed by your seniors. Okay, although it is not up to the mark. Okay, because in offline mode they do not find time to discuss about all these things. Okay, and they come to me at 11th hour and try to find out, sir, how to design the report. Okay, and at that time it is very difficult for me also to let them understand. Okay, because somebody will talk onto the phone, somebody will try to discuss while walking. Okay, on the corridor, somebody will try to discuss कि sir आप कहाँ हैं, तो मैं बोलूंगा कि कैंटीन में है, तो they will come to the canteen and then we will have a discussion. Okay, so right now for the first time I am going to have a formal discussion with my students regarding the designing of project report. Okay, तो जिस तरह से मैं उन लोगों को सैंपल्स दिया करता था, I will give you also the sample. Okay, you people also the sample. Okay, so in by the end of this week you will have to submit the synopsis. Fine, this is the assignment and I will give a proper notice in your WhatsApp group. Okay, and I will make announcement also in your LMS. You have gone through the LMS. तो LMS के पेपर 409B के का जो कैटेगरी है उसमें मैं अनाउंसमेंट डाल दूंगा कि what you have to do. Okay, and I will give you whatsoever in I have to provide you in both forms, in WhatsApp group as well as in LMS. Okay, चलिए आगे बढ़ा जाए. तो उसके बाद जो है ना आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो फोर्थ कंटेंट होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट. ओके, इस एब्स्ट्रैक्ट में आप अपने प्रोजेक्ट का एक समराइज्ड व्यू जो कि एक दो मैक्सिमम 2 पैराग्राफ का होगा वो आप बनाओगे. ओके, जिससे कि आप देखे होंगे ना आपके बुक में एक प्रीफेस पेज होता है, उस प्रीफेस के जैसा ही आपको बनाना है. ओके, उसके बाद आपको जो है ना एक्नॉलेजमेंट डिजाइन करना है. ये एक्नॉलेजमेंट आप अपने पेरेंट्स के लिए डिजाइन करेंगे. ओके, आपको आपके लाइफ में जिन जिन लोगों ने हेल्प किया है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के दौरान और यहां तक पहुंचने के लिए. ओके, एज अ मार्क ऑफ टोकन आप उन सबों के प्रति जो है ना वो ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करोगे कि आपको इन लोगों ने हेल्प किया जैसे आपके गार्जियन ने आपको हेल्प किया. ओके, they have made you capable enough to take admission in St. Xavier's College. Okay, and they have helped you in studying here. Okay, and they have provided you all the resources that they can provide. Okay, maybe some of the resources that you are looking for is beyond their limitation. Okay, it's a natural course, nothing to shy about that, and no need to feel low. Okay,
Even Ambanis will not being able to provide their ward whatsoever resource they are looking for. Okay, so we'll feel comfortable. Fine. Then what you have to do, you have to make the declaration, okay, that this particular work that you have done is being done by you. You have not stolen it from anywhere. Okay. So since I am guiding you in this particular paper, so I will also give you a certificate. Fine. That this particular work is being done by Altaf or Joya or Alok or Umang, etc. Okay. And after that, this certificate of approval is not going to be there. Okay. This is for final year project. Okay. Now coming to the contents. Okay. In the content part, what you are going to do, you are going to introduce your project. Okay. Hello, are you able to hear me? आपको याद होगा अल्ताफ, मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। उसमें जो सबसे पहला जो काम मैंने किया था वो आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन था। So you will have to introduce your topic. Okay. Hello. And after that, you are going to discuss about your UML diagrams. Fine. And before coming to that UML diagram, what I am right now discussing in your paper 409A, that is your software engineering tools. Okay. So how you what solution you are proposing and what are the different approaches and models you are going to use. Okay. So it is not very conducive for us to discuss all the topics. Okay. But I will try to discuss maximum topics. हर एक, मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक ग्रुप को जो है सो डिप्राइव्ड फील करने के लिए छोड़ दूंगा। ओके। सो आपको जो है, आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग वाटरफॉल मॉडल जो है वो यूज कर रहे हैं। ओके, आपको याद है ना? और उसके बाद हम लोग जो है बोले थे कि हम लोग आइटरेटिव मॉडल को यूज करेंगे, या फिर ये क्या कहते हैं क्लासिकल मॉडल था जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज वी आर, क्योंकि मेरे को तो आपको भी देखना है ना। So you all are developing this project for the first time. You are trying to develop this type of work for the first time. So we are going to follow the evolutionary model. Okay. तो आपको वाटरफॉल मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में आपको बताना होगा। ओके। देन आपको बताना होगा कि भाई आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे उनमें से हर एक के लिए आप कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। फाइन। तो आप जो टूल यूज करोगे उसके बारे में मैं आपको बताना शुरू कर दिया हूं अपने थ्योरी पोर्शन में 409A में। तो वहां आपको पता चलेगा कि आप एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज करोगे। मैंने आपको तो डिजाइन के लिए टूल्स बता दिया है। केस आई केस मैंने आपको बताया ना। तो आप धीरे धीरे सारे टूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। और कोशिश करना है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा उस डॉक्यूमेंट में 100 से ज्यादा पेज नहीं होना चाहिए। ओके।
ऐसा नहीं कि काम किया कुछ नहीं और एक मोटा सा पुलिंदा लेकर के हम लोग बना करके पहुंच गए कि देखिए हमने इतना ज्यादा काम किया है। ओके, आपको उतना ही काम करना है, उतना ही आपको बताना है जितना आपने किया है। ट्राई टू बी ऑनेस्ट। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने जो काम नहीं किया है वो भी आपके डॉक्यूमेंट में हो और जब आपसे पूछा जाए तो आप जो है वो तारा गिनने लगे। ओके, बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपको जो है ना बताना होगा यूएमएल डायग्राम्स के बारे में। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट का काम करेंगे तो आपको आईडीई के बारे में भी बताना होगा। अगर मान लिया जाए कि आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और आप जो है सो जावा के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, आपने डॉट नेट तो नहीं पढ़ा है अभी, वो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको जो है ना बताना होगा अपने आईडीई के बारे में भी, जो आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेंगे ना, जिसको आप यूज करेंगे, आपको उसके बारे में भी बताना होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी जो बिहेवियर होती है वो दो तरह की होती है। मैंने आपको बताया था स्टैटिक बिहेवियर एंड डायनेमिक बिहेवियर। स्टैटिक बिहेवियर के लिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्टैटिक डायग्राम, दैट इज स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाओगे, जिसमें आप क्लास डायग्राम रखोगे, ऑब्जेक्ट डायग्राम रखोगे, एक्सेट्रा। ओके, और डायनेमिक बिहेवियर के लिए आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम, जैसे कि यूज केस डायग्राम हो गया, आपका सीक्वेंस डायग्राम हो गया, ये सब आप बनाओगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको जो है वो डायग्राम्स के बारे में एक एक करके बताना होगा। तो आपको पता है कि आप यूएमएल के थ्रू 9 डायग्राम्स बना सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ईआर डायग्राम बनाना है। ओके, देन यू हैव टू डिजाइन योर फ्लो चार्ट आल्सो। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग फ्लो चार्ट को एसएफडी बोलेंगे, सिस्टम फ्लो डायग्राम। You are going to have two. One is your DFD, data flow diagram, and the other one is your SFD, system flow diagram. Okay, so system flow diagram is nothing but your flow chart. Getting it? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करोगे। आपको हर एक एंटिटी के लिए टेबल बनाना होगा। उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को आप टेबल के एट्रीब्यूट के रूप में लोगे। आप उनके प्राइमरी की, फॉरेन की और नॉन प्राइमरी की को डिफाइन करोगे, है ना। और आप उनका डेटा टाइप और उनका साइज और उनके साथ कोई लिमिटेशन होगा वो बताओगे। ओके, और फाइनली जो है आप डिजाइन करोगे आप अपना डेटा डिक्शनरी। ओके, तो आप लोग जो है वो एसक्यूएल कमांड्स तो अब सीखना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि सर काफी काफी तेजी से पढ़ाते हैं। ओके, है ना। Since I was also student of Joy sir. Okay, Joy sir, you have met Praveen sir? No, Praveen sir is in Department of Geology. Okay, so Praveen he also used to teach in our department, but now since he has gone bypass surgery, after that he had confined himself to his own department. Okay, so Praveen sir, Joy sir, and one more sir was there whose name is Subhankar sir. Okay, he is right now in Haldia Institute of Technology, West Bengal. Okay, so all these three people are my Gurudevs. Okay, so I know how they try to inculcate the idea. Okay, so fine. So आप SQL commands जब सीख लोगे, okay,
then you are going to provide the SQL commands for the designing of each tables also. Okay, बात समझ में आ रही है ना? And then after doing all these things, one more thing that you are going to do, and that is your data dictionary. Okay, that data dictionary, you know what is dictionary? तो आपने एक टेबल बनाया. ओके, उस टेबल में आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रखा. फाइन. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. आपने एक स्टूडेंट टेबल डिजाइन किया. फाइन. स्टूडेंट टेबल को जब आपने डिजाइन किया तो आपने उसमें दो एट्रीब्यूट रखा. पहला स्टूडेंट का क्लास रोल नंबर और दूसरा स्टूडेंट का नेम. ओके, तो अब आपको बताना होगा कि स्टूडेंट के का जो रोल नंबर है उसका डेटा टाइप क्या होगा. ओके, और उस डेटा टाइप का साइज क्या होगा. ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह बताना होगा कि इसके साथ आप क्या रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखें. ओके, तो रोल नंबर जो है उस, अब जैसे मान लिया जाए कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो स्टूडेंट्स है उसका रोल नंबर का रेंज क्या है. ओके, तो उसके क्लास रोल नंबर का रेंज है 701 से लेकर के 750 60 70 के आसपास तक. तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि रोल नंबर का जो डोमेन है वो है इंटीजर. ओके, कि आपका इंटीजर, नॉन इंटीजर वैल्यू जो है वो आपका नॉन डेसिमल वैल्यू जो है वो आपका रोल नंबर नहीं हो सकता है. ओके, अगर आपने 701 ऑक्टल लिया है तो काम नहीं होगा. 701 आपका हेक्साडेसिमल है तब भी आपका काम नहीं होगा. 701 हैज टू बी योर डेसिमल वैल्यू. ओके, आपका जो रोल नंबर होगा वो केवल और केवल 3 डिजिट का होना चाहिए, और इसका रेंज जो है वो 701 से लेकर के 750 तक होना चाहिए. ओके, तो इसका मतलब हो गया कि आप जब इतना सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्क्राइब द डेटा. ओके, you are providing the meaning about data. Okay, and that is why this particular table will be known as data dictionary. Okay, so आपको यहां तक पहुंचना है. फाइन. अब फ्यूचर कंक्लूजन, जब आप फ्यूचर स्कोप, कंक्लूजन अभी छोड़ दिया जाए, फ्यूचर स्कोप की ओर आप जाएंगे. ओके, तो आप वहां पर बताएंगे कि आप फ्यूचर में, आपने अभी तक इसको कहां तक रखा है. तो अगर आपने केवल इसकी डिजाइनिंग पार्ट की है, ओके, आपने केवल सिस्टम इंजीनियरिंग का काम किया है, देन यू विल से कि भाई इन फ्यूचर यू विल ट्राई टू डेवलप दिस पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, और ऐसा करने के पीछे आपको रीजन बताना होगा. ओके, तो जो सबसे पहला रीजन आप बताएंगे वो ये होगा कि डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के लिए जिन टूल्स की जरूरत है वो टूल्स अभी आपने सीखा नहीं है. ओके, क्योंकि आपको अगर ये काम करना है तो आइदर यू आर गोइंग थ्रू जावा, तो जावा में भी आपने जो जावा सीखा है दैट इज योर कोर जावा. ओके, आपको फॉर्म्स, आपको मैं फॉर्म तक डिजाइन करवाऊंगा. आप देखेंगे आपके सिलेबस में, आपके पेपर ए में यूजर इंटरफेस भी है. ओके, है ना. तो मैं आपको फ्रंट एंड, अगर मैं आपको डेटा डिक्शनरी तक ले जा रहा हूं, मतलब आपको बैक एंड में वहां तक ले जा रहा हूं, तो मैं आपको फ्रंट एंड भी डिजाइन करने के लिए बताऊंगा. ओके, ओके, लेकिन लिमिटेशन क्या होगा, आप उस फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, आपको जो है ना वो क्या कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जावा प्रोग्रामिंग आपने नहीं किया है. ओके, आपको जावा स्विंग, जावा जावा एप्लेट्स अभी नहीं आती है. ठीक है ना. आपने स्विंग, जावा के स्विंग पर काम किया है? नो. आपने एप्लेट्स में भी अगर काम किया होगा तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा. ओके, हुआ था ना. तो आप अगर ऑनर्स लेवल पर रहेंगे तो देखिए आप 2-3 काम कर सकते हैं. ठीक है ना.
जब आप सेमेस्टर 5 में होंगे, ओके, तब आप डॉट नेट पढ़िएगा, फाइन। और जब आप सेमेस्टर 6 में रहेंगे तो आप पीएचपी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ओके। अभी आप सेमेस्टर 4 में आप तो पीएलएसक्यूएल पढ़ रहे हैं ना, और आपके जो आईटी वाले हैं वो एक्सएमएल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाई हो रहा है? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। एक्सएमएल स्टार्ट नहीं हुआ है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपके पास एचटीएमएल का नॉलेज है, तो एचटीएमएल के नॉलेज से आप अभी वेब बेस्ड जो है ना वो एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाओगे, ओके। बिकॉज एचटीएमएल के थ्रू आप केवल फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो, बैक एंड के साथ कनेक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ओके। तो फॉर दैट यू रिक्वायर एटलीस्ट एक्सएमएल, ओके। सो एक्सएमएल जो है वो रितेश सर आपको बताएंगे, ओके। एंड पीएचपी जो है वो आपको रितेश सर ही बताएंगे, फाइन। तो अभी आपको जो है ना वो फ्रंट एंड यानी कि कोडिंग डेवलप करने की टेक्निक मालूम नहीं है, फाइन। दैट इज व्हाई मैंने सिस्टम इंजीनियरिंग तक अपने आप को रखा है, ओके। क्योंकि अगर इसके आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन समय निकालना होगा, ओके। मेरे को भी पहले तो ये देखना होगा ना कि मेरे को जो असाइन किया गया है वो अपना सारा काम कर लें, वो काम हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम कोई दूसरा काम सोचेंगे। तो पहले तो मैं आपकी सिस्टम इंजीनियरिंग तक काम कराऊंगा, उसके बाद में सोचेंगे कि इसको डेवलपमेंट में ले जाना है कि नहीं ले जाना है। दैट इज वाई मैंने इसको सेमेस्टर 6 के लिए छोड़ दिया, ओके। बात समझ में आ गई? उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन दोगे, ओके। तो मैं आपको जब सैंपल दूंगा इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इसको वर्ड्स के फॉर्म में कैसे फ्रेम करके लिखना है, ओके। और हर चीज मैं कराऊंगा और देखूंगा कि आप लोग किस तरह से कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर नीचे जो है वो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी दिया है, ओके। तो यहाँ पर आपको मैंने गूगल स्कॉलर पर काम करने के लिए बोला था ना कि आप गूगल स्कॉलर पर जाएंगे, आप गए थे, आपको कुछ बेनिफिट मिला? आपको गूगल स्कॉलर की जानकारी थी पहले? नो सर, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी। इस वर्ल्ड में ये जो हमारा जो ग्लोबल स्पेस है ना, ये नॉलेज से भरा हुआ है, दैट इज योर नॉलेज स्पेस, ओके। आपको जो है ना आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज एंड आफ्टर दैट यू आर कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग दैट नॉलेज इनटू विजडम, ओके। तो आप वहां से जो जो पेपर देख रहे हैं, ओके, देखिए हम लोग जो है ना हमारे पास सब कुछ नहीं होता है, ओके। आप लोग आज के समय में जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोग बुक परचेज करते हैं ना। हम लोग जब अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे तो हम लोग बुक शेयर करते थे, ओके। और क्लास 10th में जब मैं था ना तो मेरे को बुक के लिए अराउंड 3 मंथ वेट करना पड़ा था, बिकॉज मैट्रिक का एग्जामिनेशन तो मार्च के एंड में समाप्त होता है, ओके। और क्लास 10th जो है वो तो शुरू हो जाता है जनवरी में। तो आप समझ सकते हो कि आप लोग धीरे धीरे कैसे जो है वो प्रिविलेज्ड बनते जा रहे हो, ओके। बट डिस्पाइट दैट आपको एटलीस्ट क्रेडिट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। आपने किसी के द्वारा किए गए काम को अपने काम में यूज किया, ओके। देन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट और आपको बताना होगा कि आपने इन इन लोगों से हेल्प लिया है। तो आप तो अगर किसी पर्टिकुलर रिसर्चर के पेपर को यूज कर रहे हैं तो आप रिसर्चर से तो डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं ना, आप तो उससे इनडायरेक्टली मिल रहे हैं।
तो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में उस पर्टिकुलर पेपर को आपको डालना होगा, सो दैट दैट पर्सन इज गेटिंग द क्रेडिट। ओके, और उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि आपको अपेंडिक्स की जरूरत होगी। अगर जरूरत होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि ये आपको लेकर के चलेगा वो अगले ईयर, आपको थर्ड ईयर में आपको हेल्प करेगा, सेमेस्टर 6 में। ओके, तो दो चीज, अपेंडिक्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, ये दो चीज की आपको जरूरत नहीं है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो इतना काम आप लोगों को करना है, और मैं उम्मीद करता हूं अल्ताफ की आपके बैचमेट्स को समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। ओके, आप अभी तो समय नहीं है। आई विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट वन सैंपल सिनॉप्सिस टुमारो। ओके, ये इस काम को करने के बाद मैं आप लोगों को फिर पर्ट, जीनैट जो चार्ट, जीएनटीटी चार्ट जो था ना, ये सब के बारे में बताऊंगा, है ना? Okay, so I am sure you all have got the idea about all these things. Okay, so let me ask some of your other batchmates. Okay, probably roll number 701 is here. Yes, roll number 701. Yes, sir. Yeah, now I am happy that you have added your class roll number also in front of your name. Okay, Yes. because due to the absence of that, I was not able to find whether you are present or not. Okay. Okay. So have you got the idea about all these things? Yes. Yes, sir. I have already sent this particular document to you. Okay. Yes. In your WhatsApp group, and very soon I will be sending it in the LMS also. Okay. Okay, sir. So that it will remain there. Okay. Yes. WhatsApp ग्रुप में तो एक प्रॉब्लम है ना कि वो एक वीक के बाद वो ऑटो डिलीट हो जाता है ना। हेलो, नहीं सर, कहाँ डिलीट होता? तो इसका मतलब है कि आप वो ऑप्शन ऑन नहीं होगा। मैं ऑन कर देता हूँ तो एक वीक के अंदर डिलीट हो जाएगा। ओके, नो मत प्रॉब्लम, करिए। नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया? यस सर। देखिए ये डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे ये आपको अंदर जो है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोला था कि इसको समझना इतना आसान काम नहीं। देख रही हैं, ये सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, यस सर। हर एक स्पेसिफिकेशन को आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप जो है किस तरीके से काम कर रही हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, एक जब आप सिनॉप्सिस बना रही हैं तो यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है लिटरेचर सर्वे, दिया हुआ है ना। यस सर। आप जो गूगल स्कॉलर से डॉक्यूमेंट ले रही हैं, जो किसी रिसर्च स्कॉलर के द्वारा रिसर्च करके वहां पर डाला गया है, तो दैट इज नथिंग बट लिटरेचर सर्वे। ओके, ओके सर। तो हर एक लिटरेचर का आपको एंट्री रखना होगा, सो दैट कि आप बता सकें कि आपने इन लिटरेचर के थ्रू आपको ये जानकारी मिली है। ओके, ओके सर। अब जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, यस सर। मैं आपको पर्ट चार्ट के बारे में बताऊंगा। कोई आपसे पूछेगा कि आपको पर्ट चार्ट के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि आपको आपके सर ने बताया। ओके, यस। हो सकता है कि जो एग्जामिनर आपके सामने आएगा, ही इज गोइंग टू बी मोर हैविंग मोर नॉलेज देन मी। ओके, यस। बिकॉज इवोल्यूशन इज द नेम ऑफ नेचर। ओके, यस। तो वहां पर वो आपको बोलेंगे कि देखिए आपने ये काम किया, इस काम को अगर आप ऐसे करती तो और बेहतर होता। ओके, यस। क्योंकि मेरा मानना है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। ओके, ओके सर। और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका बता रहा हूं जो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, यस। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा, जब आप वाइवा में आएंगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट जो है वो एक एक्टर होगा। ओके, यस। तो मैंने आपको बताया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एक्टर। यस सर। बात समझ में आ रही है ना? यस सर।
आपको पता होना चाहिए कि आपने एंटिटी, आपने जो एक ईआर डायग्राम बनाया, उस ईआर डायग्राम में आपने एक एंटिटी को एज्यूम किया कि दिस वन इज एन एंटिटी. ओके, Yes, sir. आपसे पूछा जाएगा व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर एंटिटी ओनली, व्हाई नॉट अदर वन. ओके, Yes, sir. तो ट्राई टू बी एक्सट्रीमली लॉजिकल. आप जो भी काम करेंगे उस काम के पीछे सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए. ओके, Okay, sir. and tomorrow we are going to discuss about synopsis, one sample synopsis. Okay, Okay, sir. ये मैं आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड नहीं रखूंगा, मैं कोई दूसरे टॉपिक को लेकर के रखूंगा. ओके, Okay, sir. सो दैट कि नोबडी विल फील कि भाई किसी के साथ पार्शियलिटी हुई है. ओके, Okay, sir. अगर मान लिया जाए कि मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड एक सिनॉप्सिस डिस्कस किया, तो बाकी लोग सोचेंगे कि सर इज फेवरिंग ग्रुप 1 स्टूडेंट्स. ओके, Yes, sir. this is not the case. In before me, all of you are equal, whether you are having project number 1 or project number 10. Okay, Okay, sir. got it? Yes, sir. So tomorrow when we will meet, right now it is 12:19, so we will have to wind up. Okay, Okay, sir. okay, so just wait for the attendance process to be completed, and after that I will let you people go. Okay, Okay, sir. so I am sure you are not finding any sort of difficulty, Joya. No, sir. You are the class representative also, na? Yes. So try to be little bit more active, Joya, है ना? Okay, sir. मैं वैसे लोगों से जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो एक्सप्रेस करेंगे. दे आर गोइंग टू शो देयर लीडरशिप क्वालिटीज. ओके, Okay. तो ये आज हम लोग जो है करीब करीब 1 से 1.5 वीक के बाद जो है वो यहाँ मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर पेपर को डिस्कस करने के लिए. ओके, Yes, sir. और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. फाइन. Yes, sir. So hopefully that we are able to discuss things in a very proper manner. Now I am going to move towards the attendance portion. Okay, Yes, sir. only 49 students are here. Okay, so it is going to be very difficult for you people to think and to find that how things are going on. Okay, Yes. Umang, are you present or not? (801). It seems to me that 801 is not present. Okay, Joya? Yes, sir. No. So convey the message to rest of your batchmates that they have to be present in the class. Because if I am going to put all of you in the quiz mode, then I don't want any excuse कि सर मेरे को ये जानकारी नहीं थी, वो जानकारी नहीं थी, ऐसा मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं रहूंगा, because I am discussing with you all at length. Okay, Yes, sir. so ask your batchmates to be present in a very honest manner in both of my classes, not only at 8:20 but also at 11:40. Okay, Yes. so from tomorrow I am expecting around 100% attendance. Okay, today in both classes the attendance was about 50%, so this is not acceptable. Okay, Yes, sir. so roll number 751. yes, sir. So are you getting the idea? Yes, a little bit. So you have got the idea how to develop your report? No, sir, not as much because I was leaving the class and Tomorrow I joining. will discuss about synopsis. Okay, Yes, sir.
and at that time you will be able to understand how the synopsis is going to be developed, and at that time I will also let you know how to design your front page, okay, cover page. Yes, okay. You will be able to find how things are going on, okay. Yes, sir. So till then, I am winding up the lecture, and my good wishes, best wishes are all of you, with all of you. May all of you enjoy good health. Okay. 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 Thank you very much, my dear students.